2011 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके इख्तिताम पर आलमी कुव्वतें अपने तौर पर अफगान मसले को हल करने के लिए कोशा नजर आईं। आपको ये बता दें कि 2012 के इब्तिदा में ही तालिबान अफगानिस्तान के सियासी मंजरनामे पर वापस आते नजर आ रहे हैं। तालिबान आए भी गए भी, फिर अफगानिस्तान में आते नजर आ रहे हैं, लेकिन दुनिया इनकी हकीकत से बहुत कम वाकिफ है। क्या इनकी अफगानिस्तान में 10 साला कार्रवाइयां अमरीकी स्टांस में तब्दीली का सबब है? Well, after 10 years of fighting the Taliban in Afghanistan, Vice President Joe Biden says the Taliban is not really the enemy. یہ ہیں جنہوں نے جدید ہتھیاروں سے لیس نیٹو اور امریکی افواج کو دیا ٹف ٹائم، جن کے سامنے دنیا کی اعلیٰ ترین جنگی ہتھیار اور ٹیکنالوجی نظر آتی ہے بے بس۔ یہ جو بختربند گاڑیوں اور ٹینکوں کو اڑا رہے ہیں کھلونوں کی طرح، یہ جو بم باندھ کے اڑاتے ہیں خود کو اور دوسروں کو، یہ ہیں افغان طالبان۔ یہ افغان طالبان کون ہیں؟ ان کی تحریک، قربانی اور جذبے کے محرکات کیا ہیں؟ یہ صرف مدارس کے طالبان ہیں یا پھر کچھ اور عناصر طالبان کے نام پر اکٹھے ہوئے ہیں؟ وہ دین کی خاطر لڑ رہے ہیں پشتون ولی کی بنیاد پر، یا پھر طاقت و اختیار اور پیسے کے لیے؟ وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اور یہ کہ پاکستان اور پاکستانی طالبان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ ان طالبان کے بارے میں حقائق جاننے کے لیے ہم آپ کو لے جاتے ہیں اس خطے کے سفر پر جہاں طالبان کا طوطی بول رہا ہے۔ سفر کا آغاز کرتے ہیں اس شہر سے جس نے سوویت یونین کے خلاف جنگ میں بھی مجاہدین کے لیے بیس کیمپ کا کردار ادا کیا، مگر آج خود آگ اور خون میں لپٹا نظر آتا ہے۔ ڈیونین لائن کے دونوں اطراف آباد عوام کی مشترکات سمجھے بغیر ہم افغان اور پاکستانی طالبان کے معاملات کو بھی شاید صحیح طرح نہ سمجھ سکیں۔ اس روایتی شہر کی خوبصورتی کو دوبالا کر رہی ہے پشاور یونیورسٹی۔ اس یونیورسٹی کے بیچ میں واقع ہے ایریا اسٹڈی سینٹر۔ اس خطے اور یہاں کے لوگوں کو سمجھنے اور اپنے سوالات کے جوابات پر علمی تناظر حاصل کرنے ہم ملے ڈاکٹر فخر الاسلام سے۔ بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ جو جب کمبائن ہوتے ہیں تو افغانستان اور پاکستان کی ہمسائیگی جو ہے وہ بالکل ممتاز کر دیتی ہے۔ وہ چیزیں چین کی ہمسائیگی سے اور بھارت کی ہمسائیگی سے یا ایران کی ہمسائیگی سے، تو اس لیے یہ جو ریشیل اور یہ جو نسلی قسم کی ہمارے درمیان جو ہے جو تعلق ہے، اب آپ دیکھیں، میں آپ کو آپ کوئی بھی قبیلہ آپ اس کا نام لے لیں خیبر پختونخوا میں، اس کے جو آبا و اجداد افغانستان سے، بلکہ یہاں پہ کیا موقف، آپ ملتان میں جائے گردیزی کہاں سے آئے ہیں، آپ جائے تو ایبٹ آباد کے جدون کہاں سے آئے ہیں، اور افریدیوں کی اور یوسف زئی کی اور مومند اور عثمان خیل اور ان کی تو بات یہ اور ہے، یہ تو سب وہیں سے آئے ہیں۔ یہ جو بارڈر ہے پاک افغان بارڈر، یہ دیگر بارڈر سے اس کی حیثیت کس طرح مختلف ہے؟ ایک تو بہت طویل ہیں، ٹھیک،
दूसरी ये कि इसके ये ओवर द ईयर ये मुतनाज़ भी रही है, लेकिन वहाँ उस तरफ सरहद के उस ये बात किस हद तक कि वो मुआहिदा 100 साल के लिए था और अब उसकी मुद्दत पूरी हो गई? ये इंटरनेशनल लॉ की बहुत ज़्यादा पेचीदगियों में फिर हम पड़ जाएंगे, और मैं ख़ुद अपने आप को इसका वो नहीं समझता कि मैं इस पर राय दे दूँ। तो बहरहाल एक तनाज़ा है, अगरचे इन हालात में तो तनाज़ा खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मुझे ख़दशा है कि मुस्तक़बिल में इस पर जो है ना तनाज़ा शुरू हो सकता है। अच्छा, ये जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत हुई, आपका क्या तज्ज़िया है कि उसमें कितना किरदार वो ग्लोबल पावर्स का था, कितना किरदार उसमें मज़हब का था, और कितना रोल उसमें ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के पख्तून बेल्ट की और पाकिस्तान के पख्तून बेल्ट के कल्चर और रिवायात ने अदा किया है? ये जी मैं समझता हूँ कि इन 3 चीज़ों का उसमें रोल था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ कि इसमें सुपर पावर का रोल ज़रा डोमिनेंट था, वो सबसे ज़्यादा अहम था। ये बाकी फैक्टर्स भी उसमें शामिल थे। और ये जो फिर पाकिस्तान के कबायली इलाक़ों में अफ़गान तालिबान भी आए, अलकायदा वाले भी आए, और यहाँ पे भी तालिबानाइजेशन हो गई, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें भी ये पख्तून वली और पख्तून रिवायात का किरदार था, या कि इसके अवामिल कुछ और थे? बिलाशुबा इसमें वो अवामिल जो थे, ख़ास तौर पे जो है पख्तून वली का, कि अगर कोई आपके यहाँ मेहमान आ जाए तो उनके साथ फिर रिश्ते हुए और रिश्तेदारियाँ हुई, उनकी शादियाँ यहाँ हुई, यहाँ की ख़वातीन उनको ब्याही गई, तो ये चीज़ तो उनमें शामिल थी। लेकिन ज़ाहिर नज़रियाती और मजहबी जो ताल्लुक़ था उसने भी इसमें बड़ा रोल अदा किया। पेशावर यूनिवर्सिटी के इल्मी माहौल में पख्तून रिवायात और इस खित्ते के तारीख़ी पस मंज़र पर डॉक्टर फ़खरुल इस्लाम के फ़िक्री ख़यालात को आज के सियासी हालात पर परखने और तहरीक तालिबान के पस मंज़र और मौजूदा हैत को समझने के लिए हमें मिलना है एक ऐसे माहिर से जिसके मुशाहिदात जामे और इजहार बरमला हो। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई की दाढ़ी अफ़गानिस्तान को समझते और लोगों को समझाते हुए सफ़ेद हो गई। अफ़गान तालिबान जो हैं वो हालात की पैदावार हैं, ठीक, किसी ने उनको नहीं बनाया, वो ख़ुद बने हैं। मैं तो ये कहता हूँ सलीम साहब, अगर अफ़गान तालिबान की बजाय कोई और कुव्वत सामने आती, हत्ता के जो पुराने कम्युनिस्ट थे खल्की और परचमी, शायद लोग उनका भी इस्तकबाल करते। अफ़गान तालिबान में कितने लोग ऐसे थे जो कि पाकिस्तान के मजहबी लीडरों के साथ उनके रवाबित थे, या वो पाकिस्तानी मदरसों में पढ़े हुए थे, और फिर उनकी तहरीक में पाकिस्तानियों का कितना किरदार था, यानी पाकिस्तानी तालिबान या पाकिस्तानी मुजाहिदीन? देखें, एक वक्त में 5 मिलियन अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में थे, तो उनके यहाँ मदरसे थे, उनकी तालीम का बंदोबस्त था, तो ये काफ़ी तालिबान जो हैं अफ़गानिस्तान के, ये पाकिस्तान में उन्होंने पढ़ा है। और आप देखते हैं कि इनमें से कई अपने साथ हकानी लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि वो दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक जो पेशावर के करीब है वहाँ पर पढ़े हैं। लेकिन और बुल्ला मोहम्मद उमर भी ख़ुद वहीं के पढ़े थे। बुल्ला मोहम्मद उमर ख़ुद तो कहते हैं कि जी मैं तो पाकिस्तान बहुत कम गया हूँ, जब मैंने उनसे पूछा था। अच्छा। और जब वो ज़ख्मी हुए थे रूस के साथ, रूसी फ़ौज के साथ जंग में, अपने गांव सिंगेसर में जो कि कंदहार हेरात रोड पर वाक़या है, मेवन के इलाके में, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मेरा इलाज पाकिस्तान में हुआ था और ICRC रेड क्रॉस ने उनका इलाज किया था। लेकिन यहाँ पर उनकी आमद रफ्त रही है, यहाँ पर भी उन्होंने कुछ अरसा पढ़ा है।